Good morning, student. Today we will start our new syllabus regarding history and civics for class 8th. And our first chapter is sources of history. Now let's start our chapter. So look at the chapter. First we have seen the introduction. In that introduction we have seen medieval India, ancient India and modern India. So we know the ancient type, medieval and modern history. But in our 8th standard we have study about history regarding a modern India. Now let us start our reading the sources of history. We have studied the sources of ancient and medieval Indian history. This year we are going to study the sources of modern Indian history. Historical sources including material source, written and oral sources. Similarly, sources based on a modern technology such as audio video and audio visual are including. So look at this paragraph. We have seen in this paragraph, we have regarding the history, we have study about ancient history, medieval history, and now we will start our modern history. But in modern history, we have including two more things, that is audio video and audio visual sources also. Now we can go for our first point, that is material sources. In material sources we have seen the various objects like mementos, place, coin, sculpture, etc. can be including in the material sources. Now I will give you the some pictures in our slide, that is the sculpture and fountains regarding the building and places. Okay, now we can go for our new topic, that is a buildings and places. The period of a modern Indian history is believed as a period of European, especially the British ruler and the governance of a princely state. Look at this. In our pre-Indian history, we have seen there is a British rulers was there, European rulers was there. Then kings also take charges of our country, right? They have to do all the things. We don't have our own rights. But after a post independence means स्वतंत्रता के बाद हम हमारे अधिकार खुद 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 को मिलने लगे, हमें अधिकार मिलने लगे, हम उसके बारे में बोल सकते थे. बट उस जमाने में मीन्स प्री इंडियन हिस्ट्री में हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते थे. हमारी इंडिया का सब कुछ ब्रिटिश रूलर्स, यूरोपियन रूलर्स के हाथों में हुआ करता था. बट एग्जाम्पल इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स एक्सेट्रा. और उस जमाने में बहुत सी चीज़ों के कंस्ट्रक्शंस हुए, जैसे कि बिल्डिंग्स बनी, डिफरेंट डिफरेंट ब्रिजेस बने, रोड्स बने, वाटर सप्लाई सोर्सेज के सिस्टम्स बने, फिर फाउंटेन्स बने अलग अलग तरीके के. देन these buildings including government offices, residence of officers, और उन्हीं बिल्डिंग्स को हमने कन्वर्ट किया. जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स है, वो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे. देन रेसिडेंस ऑफ ऑफिसर राष्ट्रपति भवन हो गया हमारा. देन लीडर्स एंड रेवोल्यूशनरी पैलेसेस ऑफ अ रूलर ऑफ अ प्रिंसली स्टेट, फोर्ट, प्रिजन्स एक्सेट्रा. हमने बहुत से प्रिजन्स भी देखे, मीन्स जेल. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अलग अलग चीज़ों को हमने किस में कन्वर्ट किया. अभी उन सब चीज़ों को, उन सब बिल्डिंग्स को हमने टोटली मोमेंटोज मीन्स हमारे प्राचीन काल की संपत्ति जिसे हम कहते हैं उसमें कन्वर्ट किया, राइट. अमंग दिस मोमेंटोज मेनी बिल्डिंग्स आर इंटैक्ट इवन टुडे ऑल्सो. और उस प्राचीन समय से जो बिल्डिंग्स आ रही है, ब्रिटिश काल से जो बिल्डिंग्स बनाई गई है, वो आज भी हमें इंटरैक्ट करती है, मीन्स हमें देखने को मिलती है, हम वहाँ जा सकते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है. सम आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल मोमेंटोज, और कुछ चीजें नेशनल मोमेंटोज के नाम से डिक्लेयर की गई है, राइट. Then some are declared as a national memento, whereas some are converted into museums also. और कुछ ऐसी है जो म्यूजियम्स में भी कन्वर्ट हुई है, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी का सेवाग्राम आश्रम हो गया, देन मणि भवन हो गया मुंबई का. बहुत सी चीजें जो है वो कन्वर्ट हुई है. Then while visiting these sites we get information about a contemporary history.
और जब हम इन साइट्स को विजिट करते हैं तब हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, आर्किटेक्चर्स, नेचर ऑफ द मोमेंटोज एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। और जब हम इन साइट्स को विजिट करते हैं तब हमें पता चलता है कि उस जमाने में, उस वक्त वहाँ की जो आर्किटेक्चर्स थे, जहाँ वहाँ पे कहते हैं ना शिल्पकार, आर्किटेक्चर्स जो थे, जो किस तरह से उन्होंने उन चीज़ों का कहते हैं ना बिल्डअप किया था, किस तरह से बनाया था, और तो और वहाँ उस वक्त आर्थिक परिस्थिति किस तरह की थी, उन सब चीज़ों को वो बिल्डिंग्स हमें दर्शाती है, वो मोमेंटोज हमें दर्शाते हैं। जस्ट एज अ ड्यूरिंग द विजिट एट सेल्युलर जेल in Andaman, we get information about the revolutionary work। और जब हम अंडमान में विजिट करते हैं, अंडमान निकोबार जो है, जहाँ पे सेल्युलर जेल थी, वो जेल अब म्यूजियम के तौर पे दिखाई जाती है, पर उस जमाने में वहाँ पे जो हमारे रिवोल्यूशनर्स रखे गए थे, जो हमारे लीडर्स रखे गए थे, उन्होंने वहाँ पे किस तरह का वो वहाँ का मॉडिफिकेशन था, किस तरह की वो बिल्डिंग का हिस्ट्री था, आर्किटेक्चर था, वो सब देखा, राइट। Cellular jail in Andaman, we get information about the revolutionary work of वी.डी. सावरकर। और वी.डी. सावरकर वहाँ पे थे, उनका रिवोल्यूशनरी वर्क, उन्होंने वहां पे रह के किताब लिखी। कौन सी किताब, वो भी हमें पता चलता है बाय विजिटिंग मणि भवन इन मुंबई। और जब हम मणि भवन में विजिट करते हैं मुंबई में, और सेवाग्राम आश्रम एट वर्धा, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गांधीयन एरा। और जब हम मणि भवन या फिर सेवाग्राम आश्रम में जाते हैं तो हमें महात्मा गांधी की बहुत सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सी, उनके चश्मा हो गया, उनकी लाठी हो गई, उनके चरखा हो गया, बहुत सी चीज़ें जो वहाँ पे आज म्यूजियम के तौर पे वहाँ पे रखी, उन्हें म्यूजियम का दर्जा दिया गया है और उन चीज़ों को वहाँ पे रखा गया है। नाउ वी कैन गो फॉर अ नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज अ डू यू नो म्यूजियम्स एंड हिस्ट्री। अब हमें म्यूजियम्स और हिस्ट्रीज के बारे में बताएं। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, वेरियस ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग, फोटोग्राफ एंड सच अदर थिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन अ म्यूजियम। बहुत से फोटोग्राफ्स, बहुत सी चीजें म्यूजियम में प्रिजर्व मीन्स रखी जाती है। हम कहते हैं ना प्राचीन काल की चीजों को हम संभाल संभाल के रखते हैं। एट द आगा खान पैलेस, अब मैंने आपको आगा खान पैलेस के बारे में, जो पूना में है, वो पूना में है, पहले वो पैलेस था बट बाद में उसका कन्वर्जन किस में किया गया, म्यूजियम के तौर पे किया गया। वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और उस जगह पे महात्मा गांधी के डिफरेंट चीजों के, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें वहां पे मिलती है। Now we can go for a next topic, that is our statues and memorials. During the pre-independence and post-independence, अब pre-independence means स्वतंत्रता के पहले, और post हम स्वतंत्रता के बाद की बात करेंगे period, memorials of many personalities were erected in the form of statues। बहुत से हमारे स्टैचूज बनाए गए, लोगों के नेता लोग थे जो हमारे, उनके स्टैचूज बनाए गए, जैसे महात्मा गांधी हो गए, अंबेडकर हो गए, लोकमान्य तिलक हो गए, ज्योतिराव फुले हो गए, इनके स्टैचूज बनाए गए। हमने बहुत सी जगह पे देखे, अगर हम विजिट करते हैं नासिक, मुंबई, पूना, जहाँ भी, हमने बहुत से स्टैचूज देखे हैं। These statues are also important for the study of modern Indian history। और वो स्टेचूज हमें हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की स्टडी के बारे में जानकारी देते हैं। The various statues provide information about the contemporary rulers and eminent personalities। और तो और वो जो स्टेचूज है वो हमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी देते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं, और उनकी इंफॉर्मेशन, वो पर्सनैलिटी कैसी थी, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, वो कैसे पर्सनैलिटी थी, उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, कैसे किए। लोकमान्य तिलक हो गए हमारे, महात्मा ज्योतिराव फुले हो गए, फुले ने कौन सी प्रथा स्टार्ट की, कैसे की, वो सब उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। The display plaques on the statues gives us information about the full name of the concerned person, birth and death details, brief information about their contribution and a biographical sketches of the person। और तो और हमें उनके जन्म से लेके तो उनके मृत्यु तक की मीन्स सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। इवन उनके बायोग्राफिकल स्केचेस कैसे थे, वो पर्सनैलिटीज कैसी थी, किस तरह का उनका वर्क था, किस तरह का उनका बिहेवियर था, वो सब चीजें हमें पता चलती हैं। जस्ट एज द स्टेचू ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, दीज आर अ मेमोरियल्स। और जो स्टेचूज है, जैसे कि
महात्मा ज्योतिराव फुले हो गए, लोकमान्य तिलक हो गए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए. These are memorials which are erected in the memories of various events which gives information. और ये सारे के सारे हमें क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे स्टैचूज के बारे में. अब देखिए मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई है. इस स्लाइड में मैंने आपको बिल्डिंग और प्लेसेस के बारे में बताया. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था सेवाग्राम आश्रम के बारे में, मणि भवन दिखाया, आगा खान पैलेस दिखाया, सेल्युलर जेल दिखाई है. तो ये सब हमारे बिल्डिंग एंड प्लेसेस है जो हमने हिस्ट्री में मीन्स ब्रिटिश काल से जो बने हुए हैं और आज भी उन्हें म्यूजियम के तौर पे दिखाया जाता है. हम वहाँ विजिट करने के बाद हमें उनकी पूरी तरह से जानकारी मिलती है. Okay, now we can go for a next slide, and that is our we start our next page, page number 2. Okay, now about the concerned event period, people related to the event etc. For example, हुतात्मा स्मारक at a various place. अब हुतात्मा स्मारक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्मारक जो हुतात्मा मीन्स जो हमारे पर्सनैलिटीज थे, लीडर्स थे, उनके स्मारक किस तरह से बनाए गए हैं वो भी मैंने आपको दिखाया है. Then now we can go for our next source, that is a return source. Let's study about the return sources. Okay, the following aspects are including in the return sources of a modern India. अब ये जो भी return sources है ये हमारे modern India को किस तरह से follow up में लाते हैं हम वो देखेंगे. जैसे कि मैंने आपको एक चार्ट मीन्स एक टेबल बना के दिखाया जिसमें रिटर्न सोर्सेस कौन से हैं हमारे, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी. करस्पॉन्डेंस हो गया, फॉरेन अकाउंट्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, बायोग्राफीज हो गए, periodicals हो गए, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स हो गए, ऑटोबायोग्राफी हो गई, बुक्स हो गई. तो ये सब चीजें हमें उसमें देखने को मिलती है. नाउ वी कैन गो फॉर अवर next topic, that is a newspaper and periodicals. Okay, so newspaper provides us information about the contemporary events. और न्यूज़पेपर एक ऐसा जरिया है जो हमारे रोजमर्रा के इवन वॉट एवर कंटेम्पररी इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं. Along with its detailed analysis of a particular event, views of amendment people. और कौन से particular events हुए, जैसे कि मैंने आपको दो पिक्चर्स दिखाए हैं यहाँ पे कि जैसे अंबेडकर का पिक्चर दिखाया, उन्होंने कौन सा पहला पेपर स्टार्ट किया था, मूक नायक, राइट. उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे. We get information about the political, social, economic and cultural happening of that period. और उस समय उस वक्त क्या क्या हुआ था, सोशल डेवलपमेंट किस तरह से हुई थी, इकोनॉमिकल कैसे हुई थी, पॉलिटिकल चेंजेस कैसे हुए थे, कल्चरल इंडिपेंडेंस कैसा हुआ, कल्चरल किस तरह से हैपनिंग हुआ था, उस पीरियड के बारे में भी हमें इन सब चीजों से जानकारी मिलती है. In the pre-independence period, newspaper like ध्यान उदय, ध्यान प्रकाश, अमृत बाजार, पत्रिका, दीनबंधु, केसरी acted as an important source of awaken the mind of people. और ये जो सारे न्यूज़पेपर्स के मैंने नाम पढ़े अभी, जैसे कि ध्यानोदय, ध्यान प्रकाश, अमृत बाजार, पत्रिका, दीनबंधु, केसरी, केसरी पता है ना आपको, केसरी न्यूज़पेपर acted as an important source of awaken the mind of people. और उस वक्त लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, क्या क्या चीजें घट रही है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, उनके बारे में ये पत्रिकाएं जानकारी देते थे. Through the newspaper we can study the British policy regarding India and their effects on India. और इन न्यूज़पेपर के थ्रू ब्रिटिश क्या कर रहे हैं हमारी इंडिया पे, किस तरह से शासन कर रहे हैं, उसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, इन सब चीजों की जानकारी मिलती थी. During the British period, newspapers were not only the source of political events but also acted as a source of social reinformation. उस जमाने में प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, ब्रिटिश जो पीरियड था हमारा, उस वक्त न्यूज़पेपर सिर्फ पॉलिटिकल सोर्सेज के बारे में ही जानकारी नहीं देते थे बल्कि हमारे सोशल रीइंफॉर्मेशन मीन्स हमारे सोशल जानकारी जो भी थी उसके बारे में भी हमें पता चलता था. जैसे कि द निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपळूणकर and शतपत्री written by लोकहितवादी alas Gopal Hari Deshmukh in the weekly Prabhakar comments on a various social and cultural issues. अब जैसे कि निबंधमाला करके उन्होंने बताइए जो किसने लिखी है, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने, एंड शतपत्री रिटर्न बाय अ लोकहितवादी अलास गोपाल हरि देशमुख. और जो दो पत्रिकाएं बताई मैंने जैसे निबंधमाला और
लोकहितवादी जो गोपाल हरी और विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने रिटर्न की हुई थी, और उसके बारे में मीन्स वो वीकली थी, वीक में एक बार वो पब्लिश होती थी, और उसमें कमेंट ऑन अ वेरियस सोशल एंड कल्चरल इश्यूज, और उसमें सारे वीकली इश्यूज मीन्स कल्चरल क्या क्या होने वाला है, सोशली किस तरह से री इन्फॉर्म होने वाला है, उन सब चीजों की जानकारी दी जाती थी. लेट अस नो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर. अब हम देखेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कौन से न्यूज़पेपर्स का डेवलपमेंट मीन्स कौन सा न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया. इन जनवरी 1920 1920 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड द फोर्टनाइटली मूक नायक. फोर्टनाइटली मीन्स रात में पत्रिका कहते हैं ना, फोर्टनाइट मीन्स 4 सप्ताह बाद. But later, Dr. Ambedkar had leave the for higher studies to England and hence he handed over the paper to his colleague. और उन्होंने उस पेपर को हैंड ओवर किया अपने दोस्तों को, क्योंकि वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड शिफ्ट हुए. In April 1927, Dr. Ambedkar started the newspaper बहिष्कृत भारत. और उन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत मीन्स उस जमाने में कुछ जातियों को बहिष्कृत किया जाता था, उन्हें समाज में दर्जा नहीं दिया जाता था, इसीलिए उन्होंने इस पेपर की स्थापना की. थ्रू द मीडियम ऑफ बहिष्कृत भारत ही रोट फ्रॉम फॉर द री इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल एंड ब्रिंग यूनिटी अमंग देम. और इस पेपर के थ्रू, बहिष्कृत भारत के थ्रू, अंबेडकर ने ये जताया कि पीपल को एक साथ मिलके काम करना चाहिए, एक दूसरे को साथ देनी चाहिए. Apart from this, he also started 2 more newspaper, namely Janta and प्रबुद्धा भारत. और उन्होंने उसके ही और 2 पेपर का स्टार्ट किया जिनका नाम था जनता और प्रबुद्ध भारत मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया. लुक एट दिस Ambedkar's paper. I have shown you the pictures also. Maps and drawing. Now we can go for a maps and drawing. Map is also regarded as an important source of history. उस जमाने में भी maps बहुत important होते थे. The changes nature of a city or particular location can be traced through the maps. हम maps के through उस area की जानकारी ले सकते थे, और हमें पता चलता था कि ये इस जगह पे है या उस जगह पे है, ये हमें मैप्स और ड्राइंग्स के थ्रू पता चलता था. द सर्वे ऑफ इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. और ये सर्वे कब स्टार्ट हुआ? इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, और ब्रिटिश पीरियड में ही ये सर्वे स्टार्ट हुआ. थ्रू साइंटिफिक मेथड ऑफ अ सर्वे दे हैव क्रिएटेड मैप्स ऑफ इंडिया. और फिर इस सर्वे के दरमियान उन्होंने कौन सा मैप क्रिएट किया? इंडिया का मैप किया. वेरियस प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, सिटीज एक्सेट्रा, और उन्होंने अलग अलग सिटीज को उसमें इंक्लूड किया. सिमिलरली द प्लान डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट्स प्रूव्स important from the view of study of architecture of a building as well as phase of a development process. और तो और ये जो भी सर्वे किया गया, ये जो भी प्लान डिजाइन किया गया, एक आर्किटेक्ट जो जिसको उसके बारे में पढ़ा है, जिसकी जानकारी है, उसने वो बिल्डिंग्स की जानकारी हासिल की है, एज वेल एज अ फेज ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोसेस, और किस तरह से डेवलपमेंट की जानी चाहिए, ये सब भी उन्होंने बताया. Now we can go for a next page, page number 3. Now we can see a particular area. For example, the Department of Mumbai Port Trust has original plan of the Mumbai Port. Information about the development of a Bombay city can be understood through the plan draft by architect and engineer. और उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें Department of Mumbai Port Trust has original plan of a Bombay पोर्ट इंफॉर्मेशन, जहां अब जिसे अभी हम मुंबई के नाम से जानते हैं, तब उसे बॉम्बे के नाम से जाना जाता था. और उस सिटी का उन्होंने प्लान ड्राफ्ट किया उस आर्किटेक्चर ने, और उन इंजीनियर्स मीन्स हम कह सकते हैं ना, जैसे कि अभी हमारे इंजीनियर्स आर्किटेक्चर्स है जो बिल्डिंग के प्लान्स डेवलप करते हैं, किस तरह से बिल्डिंग बननी चाहिए, किस जगह पे दरवाजे खिड़कियां होंगे, उसी तरह से उन्होंने मुंबई पोर्ट जो बंदरगाह थे, या फिर हम कह सकते हैं जब मुंबई पोर्ट जहाँ पे जहाज रुकते हैं, उस पोर्ट को उन्होंने डिजाइन किया. किस तरह से डिजाइन किया, किस तरह से उसका आर्किटेक्चर था, वो ओरिजिनल प्लान था, और जो अभी हम बॉम्बे सिटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द प्लान ड्राफ्ट ऑफ आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर. अब हम उस प्लान को देख के हम समझ सकते हैं कि मुंबई सिटी में कहाँ कैसे किस तरह है. नाउ वी कैन गो फॉर अवर थर्ड सोर्स, दैट इज अ oral source. The following sources are including in the oral sources of a modern Indian history. Now look at this concept. I have given you one concept, oral sources. In oral sources we have seen
फोक सॉन्ग, पवाड़ा, फोक टेल, नरेशन, इंटरव्यूज, फेरी, जलसा, आर्ट ग्रुप, रिदम्स, प्रोज, ओवीज, इंस्पिरेशनल सॉन्ग। मीन्स अभी जैसे कि फोक सॉन्ग कह सकते हैं हम। फोक सॉन्ग आप सबको पता है, मीन्स जो फोक सॉन्ग गाए जाते हैं कथा के हिसाब से। पवाड़े हो गए, अब मैंने पिक्चर्स में दिखाया आपको पवाड़ा क्या होता है। महाराष्ट्र लोगों में ज़्यादा, जैसे हम शिवाजी का पवाड़ा सुनते हैं, कितना फेमस है, क्या है। देन फोक टेल्स, कहानियों को गा के सुनाया जाता है प्राचीन काल में। नरेशंस, एखादी अपन कहते हैं ना, एक स्टोरी है जिसे नरेट किया जाता है। इंटरव्यूज, किसी इंसान का इंटरव्यू किस तरह से लिया जाए। फेरीज, जलसास, आर्ट ग्रुप, किस तरह से नृत्य प्रदर्शित करके उसे दिखाया जाता है। रिदम्स, रिथमिक फोर्स, जसे ओव्या म्हणतो आपण, आता बहिणाबाईच्या ओव्या झाल्या, त्या कशा असतात ते पण मी तुम्हाला सांगितलंय। इंस्पिरेशनल सॉन्ग, अभी जैसे कि हमारे कुछ सॉन्ग होते हैं, जैसे कि हमारा जनगण मन हो गया। देन बहुत से ऐसे इंस्पिरेशनल सॉन्ग है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, एकला चलो रे, एकला चलो रे, ये सॉन्ग इंस्पिरेशनल है नेशनल के लिए, नेशन के लिए। तो ये सब चीजें भी हमने देखी। अब वी कैन गो फॉर आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अ इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। During the period of a freedom movements, various inspirational songs were composed. जब इंडिपेंडेंस मीन्स हमारा फ्रीडम मिलने के चांसेस थे, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, उस समय बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजों में एक इंस्पिरेशन, कहते हैं ना हम, एक गाना गा के लोगों को संबोधित करते थे कि नहीं, आप भी अपने देश के लिए आगे बढ़ो। Present of these songs are available in a written form, but there are many other unpublished inspirational songs memorized by the freedom fighter. और ऐसे बहुत से सॉन्ग है जो आज भी मेमोराइज किए जाते हैं। Through this inspirational song, we get information about the condition during the pre-independence period and also the spirit behind the freedom struggle could be understood. और उन गानों के जरिए हमें पता चलता है कि उस वक्त हमारे लीडर्स ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देश के लिए कितना बलिदान किया, कितनी चीजों को उन्होंने एक्सप्रेस किया। इन सब चीजों को हम देख रहे हैं, राइट। हम सुनते हैं, हमें आज भी वो सॉन्ग्स पता चलते हैं। नाउ वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ पवाड़ा। अब मैंने पवाड़ा का एग्जाम्पल आपको दिया था। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का पवाड़ा बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा। पवाड़ा इज अ सोर्स फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट और द वर्क फॉर अ पर्सन। लोक शाहीर अन्नाभाऊ साठे के बारे में आपने सुना होगा, जो पवाड़े के फेमस थे, उन्होंने पवाड़े गाए हैं। फिर these are various पवाड़े composed on a freedom struggle on 1857। और उस जमाने से 1857 के काल से ये पवाड़े चले आ रहे हैं। किस पे कंपोज किए जाते हैं? तो ये कंपोज किए जाते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स में से। शिवाजी महाराज का एग्जांपल दिया मैंने आपको, शाइस्ती खान के साथ शिवाजी महाराज का जो भेंट हुई थी, जब मिलन हुआ था, उसमें वो पवाड़े में गा के सुनाया गया है, किस तरह से उनका वो व्यू किया गया है, बताया गया है। these पवाड़ेस 1857 वेल्यूलर ऑफ अ रेवोल्यूशनरी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एक्सेट्रा। और उन्होंने ये भी बताया कि ब्रिटिश रूलर्स के खिलाफ किस तरह से वो पवाड़े गाए जाते थे। दीज पवाड़ेज वेर यूज टू क्रिएट मोटिवेटिव एंड स्पिरिट अमंग द पीपल। और ये जो पवाड़े थे, ये लोगों को जन जागृत करते थे, लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि देश के लिए आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ ना कुछ करना है। नाउ डू इट, वन होमवर्क फॉर यू, collect and present the inspirational song and powered as related to period of Indian freedom movement। ये होमवर्क आपको करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे दिखाना है, या तो फिर आप नोटबुक में ये होमवर्क कर सकते हैं और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। Apart from freedom movement, these pawadas were composed based on the work of Satyashodak Samaj for awakening among the opposed classes, the Shamyukta Maharashtra movement and such other events। संयुक्त महाराष्ट्र। अब जैसे कि इस इवेंट में, इस पवाड़े में बताया गया कि उन्होंने इस पवाड़े में क्या दर्शाया गया, फ्रीडम फाइटर्स की मूवमेंट्स के बारे में बताया गया, ये पवाड़े किस तरह से कंपोज किए गए। देन ये सत्य शोधक समाज था, जो समाज की शोध करते थे, या फिर हम कह सकते थे ना, समाज में किस तरह से डेवलपमेंट आनी चाहिए। अवेकिंग अमंग द ऑपरेस्ड क्लासेस मीन्स जो निचली जाति के लोग थे, नीचे की क्लासेस के लोग थे, उन्हें किस तरह से एक साथ लिया जा सकता है। देन उन्हें एक साथ करके इस महाराष्ट्र की मूवमेंट को, जैसे कि हमारे मराठास हो गए, सच आर अदर इवेंट्स, इन सब इवेंट्स के बारे में हमें इन पवाड़ों में जानकारी मिलती है। Now we can go for next our video, audio and audio visual sources। अब आप जैसे कि मॉडर्न इंडिया में देख रहे हैं, हमारे पास नई नई टेक्निक्स है,
रिकॉर्डिंग करने के लिए। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये ई लर्निंग के माध्यम से, तो ये ई लर्निंग हमारी रिकॉर्डिंग सिस्टम है, ये हमारे मॉडर्न ज़माने की है। बिकॉज lot of problems are there nowadays, we have seen the corona virus, इस वजह से हम हमारी स्कूल में नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं जा सकते इसलिए हम टीचर के आमने सामने नहीं बैठ सकते। तो इसी वजह से मैंने आपको ये सेशन स्टार्ट किया कि ई लर्निंग थ्रू मैं आपको किस तरह से आपकी हिस्ट्री पढ़ा सकती हूँ। सो लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अ टेक्नोलॉजी, देयर वॉज अ डेवलपमेंट इन द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी एंड रिकॉर्डिंग। अब जैसे कि देखा जाए, अगर हम ऑडियो वीडियो देखते हैं, ऑडियो हो गया तो हम चित्र देखते हैं, वीडियो हो गया तो सिर्फ आवाज भी सुन सकते हैं, ऑडियो विजुअल मीन्स हम दोनों देखते हैं उसमें। तो इसमें हम हर चीजों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हम फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं विदाउट साउंड, या फिर हम साउंड भी डाल सकते हैं। फिल्म्स, आप मूवीज देखते हो, थिएटर्स में जाते हो, आपने बॉर्डर देखी होगी, उसके बाद अभी तानाजी मूवी आई आपकी, उसके बाद आपकी क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो एक मूवी थी जिसमें मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में, हमारे प्री एंशियंट इंडिया के बारे में बताया गया था। ऐसे बहुत सी चीज़ों को हमने उसमें इंक्लूड किया है। मीन्स ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉडर्न जमाना है। ऑब्वियसली दिस फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स और फिल्म कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और ये सारे तस्वीरें जो हम प्राचीन काल से तस्वीरें लाते हैं, वो एक साथ इंक्लूड करके वो हमें पिक्चर्स के तौर पे दिखाई जाती है। तो ये भी हमारी हिस्ट्री का एक सोर्स है, एक जरिया है। नाउ वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ्स क्या होते हैं? फोटोग्राफ्स आर अ विजुअल सोर्स ऑफ अ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। पिक्चर्स, हमने बहुत सारे पिक्चर्स, हम जैसे कि अभी आप एग्जांपल लीजिए, आप गूगल पे सर्च करते हो, आपने गूगल पे डाला ओल्ड एंशियंट इंडिया, अब एंशियंट इंडिया के बहुत सारी इमेजेस आपको दिखाई देती है, राइट? वो इमेजेस लेके आप उसके आगे उसकी क्या जानकारी है वो भी हम ले सकते हैं। With the discovery of art of a photograph, photographs are various persons, events, objects, structure, places where clicked. और हम बहुत से अलग अलग पिक्चर्स को हम उस पर स्टिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको वेरियस पर्सन्स, हमने बहुत सारे पर्सन्स देखे, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, लोकमान्य तिलक हो गए, वीर सावरकर हो गए, अन्ना भाऊ साठे हो गए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए, उनके पिक्चर्स लेके हम वो फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। इवेंट, अब उस वक्त क्या हुआ था, वो इवेंट्स के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। स्ट्रक्चर, उस जमाने का स्ट्रक्चर कैसा था, प्लेसेस, उस वक्त वहाँ वो जगह कैसी थी, वी आर क्लिक्ड, हम देख सकते हैं, चिपका सकते हैं, या फिर वो हमारे स्लाइड्स में हम देख सकते हैं। Through these photographs, we get information of the person or an event in the visual format. और उस चीज को, मीन्स उस फोटोग्राफ से हम उस इवेंट के बारे में, उस पर्सन के बारे में, उन चीजों के बारे में हम देख सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। इन द केस ऑफ मिडिवल पीरियड, देयर आर पेंटिंग अवेलेबल दैट डिस्प्लेस ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ पर्सन or visual descriptions of a particular event by the authenticates of these painting is doubtful. और ऐसा भी था, देखिए, इन द केस ऑफ मिडवेल पीरियड, मिडवेल पीरियड में वो पिक्चर्स प्रॉपर दिखाई नहीं देते हम, तो मीन्स उस जमाने में सिर्फ ऑडियो रहता था। अब जैसे मूक नायक हो गया, मूक नायक, या फिर आप देखोगे उस जमाने में मूवीज किस तरह से होती थी, आपने राम राज्य देखा होगा, तो वो सिर्फ चित्रीकरण किया गया था, उसमें आवाजें नहीं थी, हमें सिर्फ चित्र दिखते थे, पर चित्रों को ही हम समझ पाते थे। उसके बाद हम उसमें फिर आगे धीरे धीरे हमने डेवलपमेंट की, हम उसमें आवाजें भी डालने लगे, बहुत से डिस्क्रिप्शंस हम उसमें दिखाने लगे। कंपेरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर टू बी मोर रियलेबल, और वो फोटोग्राफ जो थे वो कंसिडर किए जाते थे प्रॉपरली। these the photograph of a person give information about the physical features, और वो जो पिक्चर्स उनके थे, उनके फिजिकल फीचर्स मीन्स वो व्यक्ति महत्व किस तरह के थे, कैसे थे, उनकी जानकारी हमें मिलती थी उस इवेंट के थ्रू, राइट? देन उनकी ड्रेसिंग स्टाइल कैसी थी, उनके फीचर्स कैसे थे, वो किस तरह से बोलते थे, उनके हाव भाव कैसे थे, वो कैसे दिखते थे, ये सब चीजें हमें कैसे पता चलती थी, फोटोग्राफ्स के थ्रू, उस इंसान के चित्रीकरण के थ्रू हमें पता चलता। फोटोग्राफ्स ऑफ एन इवेंट गिव अ विजुअल इमेजेस ऑफ द इवेंट, वेयर एज अ फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ स्ट्रक्चर हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर। और वो पिक्चर, वो फोटोग्राफ उस व्यक्ति की, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जो फोटोग्राफ होती थी, उसको देखने के बाद ही हमें पता चलता था कि उस इंसान का नेचर किस तरह का है, स्वभाव किस तरह का है, वो किस तरह से उन चीजों को समझता है। नाउ वी कैन गो फॉर अवर रिकॉर्डिंग सिस्टम। रिकॉर्डिंग सिस्टम, अब देखिए, रिकॉर्ड, जैसे कि मैं आज आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरी आवाज थ्रू ई लर्निंग, राइट? मैं अपनी आवाजों को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रही हूँ, ये एक जरिया है मेरा आज के युग का, क्योंकि क्योंकि हम आमने सामने बैठ नहीं सकते। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें
ऑडियो विजुअल भी कर सकती हूँ आपके लिए, पर मैं सिर्फ आवाज रिकॉर्ड कर रही हूँ. The discovery of a technique of a recording was also important as a photography. अब जैसे कि मैंने आपको बताया पहले फोटोग्राफ्स, अब फोटोग्राफ्स के साथ मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे आवाज भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ. चाहे तो मैं खुद भी आपको इसमें दिख सकती हूँ, मेरे आवाज के साथ मैं खुद को आपको चित्रीकरण दिखा सकती हूँ. रिकॉर्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, और ये हमारे हिस्ट्री का एक और जरिया सोर्स है. During modern period, the speech of a leader or important personality, song, etc. is available in the form of recording. उस जमाने में रिकॉर्डिंग, उनके आवाजों को, उस पर्सनैलिटी, उस लीडर के स्पीच को रिकॉर्ड किया जाता था. जैसे कि अगर मैं कहूँ, उस जमाने में महात्मा गांधी का जो स्पीच था वो भी हम रिकॉर्ड कर सकते थे. अंबेडकर थे, लोकमान्य तिलक थे, बहुत से ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, भगत सिंह हो गए, इनके हम स्पीच रिकॉर्ड कर सकते थे. इवन उस जमाने के कुछ गाने भी थे जो पेट्रियोटिक सॉन्ग थे, जो हमें इंस्पायर करते थे हमारे देश के लिए, वो भी हम रिकॉर्ड कर सकते थे. दे कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और वो हमारे क्या थे, हिस्ट्री के सोर्सेस थे. फॉर एग्जाम्पल, नेशनल एंथम जन गण मन संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर. उस जमाने में मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर ने वो गाना हमें हमें इंस्पायर करने के लिए हमारा नेशनल एंथम बनाया था, जो हमें आज भी इंस्पायर करता है कि जब हमें जनगण मन शुरू होता है तब हमें उस वक्त तुरंत वहां पे खड़े हो जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है. क्यों? तो आज वो हमें एक जागृति देता है, हमें आगे बढ़ने की एक उत्तेजना देता है, और उसी के थ्रू हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं. नाउ वी कैन गो फॉर आवर लास्ट पेज. End of our chapter. Himself or the speech of a Subhash Chandra Bose can be used as an audio sources for the study of history of a modern India. और तो और जैसे जनगण मन के बारे में बताया, उसी तरह मैं आपको अपने सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह से स्लोगन उन्होंने बोले, और उनके वो स्पीच भी हमें मोटिवेट करते थे. वो हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते थे, किस तरह से हम हमारी हिस्ट्री को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो भी उन्होंने हमें बताया. नाउ वी कैन गो फॉर अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज अ फिल्म. अब फिल्म मेकिंग क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. फिल्म आर कंसिडर एज अ यूनिक डिस्कवरी ऑफ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और ये हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूनिक डिस्कवरी है, सबसे बढ़िया डिस्कवरी है. इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, देयर वाज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक ऑफ अ फिल्म मेकिंग. और आज हमारे 21st सेंचुरी में फिल्म मेकिंग ये सबसे मस्त, ग्रेट, सबसे डेवलपिंग टेक्नोलॉजी मानी जाती है. दादा साहेब फाल्के इन द ईयर ऑफ 1930, दादा साहेब फाल्के अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो हमने नासिक में दादा साहेब फाल्के स्मारक देखा है. फाल्के स्मारक में उनकी बहुत सी अलग अलग इन्वेंशंस के बारे में जानकारी दी गई है, उनके चित्रीकरण के बारे में जानकारी दी गई है कि उन्होंने किस तरह से मूवीज बनाए. उन्होंने पहला मूवी बनाया था जो मूक चित्रपट था, जो राम राज्य, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, जिसमें सिर्फ चित्रीकरण हुआ था, आवाज नहीं था. उसके बाद उन्होंने बहुत से ऐसे नए नए मूवीज किए जिनमें आवाज के साथ उन्होंने फाउंडेशन किया. लेट द फाउंडेशन ऑफ इंडिया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. और दादा साहेब फाल्के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1930 में फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने पहला फाउंडेशन किया. मीन्स हम कहते हैं ना शुरुआत, स्टार्टिंग. ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल. और फिर उस वक्त 1913 में हमने हमारी आज़ादी 1947 मिली, पर 1913 में जब इंडिया ने फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना की, उस वक्त ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग मीन्स उस वक्त उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की. और पहला रिकॉर्डिंग उन्होंने दांडी यात्रा, हमारे महात्मा गांधी थे जिन्होंने दांडी यात्रा की थी साबरमती आश्रम से. फिर नमक सत्याग्रह किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये मूवमेंट का भी वहां पे चित्रीकरण किया गया. एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल, और बहुत से ऐसे प्राचीन इंसिडेंट अवेलेबल हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग स्वरूप में, आप इन चित्रों में देख सकते हो. थ्रू दिस फिल्म द इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी. और अब जब जब हम वो सीन्स देखते हैं, वो इवेंट्स देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सच में ये सब हुआ था क्या. इट्स रियली रियलिटी वॉज वी हैव सीन इन दैट इवेंट्स.
Compared to the ancient and medieval period, the sources of a study of a modern Indian history are found in abundance and varieties. और इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वेराइटीज़ के बारे में पता चलता है. The archaeological sources of this period are to a great extent फाउंड इन अ बेटर स्टेट. और हमें हमारी आर्कोलॉजी ये बताती है कि एकदम बेटर स्टेट है ये हमारा, यहाँ हर चीज के बारे में हमें जानकारी मिलती है. देयर आर मेनी रिटर्न सोर्सेज प्रिजर्व्ड इन द आर्काइव्स. आर्काइव्स में आपको मीन्स ये आर्काइव्स क्या होते हैं, ये आप अगले साल मीन्स 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. जो दिल्ली में सबसे फेमस आर्काइव्स है हमारा, नेशनल आर्काइव्स जिसे कहा जाता है, दिल्ली में स्थापित है, वो सबसे बड़ा आर्काइव्स है हमारा. Then, but while referring the written source, the ideology and opinion of the author regarding the particular events need to be examined. बट वाइल रेफरिंग, अगर किसी चीज का रेफरेंस देते हैं रिटर्न सोर्स में, द आइडियोलॉजी एंड ओपिनियन, जो लिखित स्वरूप में हिस्टोरियंस होते हैं जो लिखते हैं, वो पर्टिकुलर कहते हैं ना, उनका ओपिनियन किस तरह से होना चाहिए, वो इवन नीड टू बी एग्जामिन. और वो जो भी उन्होंने लिखा है, वो जो भी स्वरूप दिया है, वो पूरी तरह से एग्जामिन किया गया. अब जैसे कि हम देखते हैं साइंस में हम प्रैक्टिकल करते हैं, पर हम हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं कर सकते. हिस्ट्री में हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, हम हिस्ट्री में वो क्रिएट नहीं कर सकते. साइंस में हम क्रिएट कर सकते हैं, पर हिस्ट्री में हम वो रिक्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सब चीजें घटित होती है, मीन्स ऑलरेडी वो हो चुकी है. There is a great need of preserving these historical sources through which the rich tradition of a history can be handed over to the next generation. और फिर इस तरह से उन्होंने जो भी हिस्ट्री प्रिजर्व की है, हिस्टोरिकल सोर्सेज जो भी प्रिजर्व की है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को वो हैंड ओवर कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी को इन चीज़ों के बारे में जानकारी सिर्फ किताबों में मिल सकती है, या तो इंटरनेट के थ्रू ही वो इसकी जानकारी ले सकते हैं. इसीलिए हमारे जो भी हिस्टोरियंस थे, जो भी हमारे राइटर्स थे, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से संजो के हमारे लिए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज़ों को हमारे लिए संजो के रखा है, हमें संभाल के रखा है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप कमेंट कीजिए. आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए. हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज देखेंगे, किस तरह से हमें सॉल्व करना है, मैं वो आपको समझाऊंगी. इसमें हमें एक डायग्राम दिया है, वो डायग्राम भी हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, मैं वो आपको समझाऊंगी. बट आपका आज का होमवर्क ये रहेगा कि आप सबसे पहले आपको जो भी है, कलेक्ट द इंस्पिरेशनल सॉन्ग एंड पवाडास टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स, वो एक आपका होमवर्क रहेगा. उसके बाद ट्रेस आउट द स्टैचूज एंड मेमोरियल इन योर नेबरिंग एरियाज, नोट डाउन द इंफॉर्मेशन ऑफ एन इवेंट और पर्सनैलिटी दैट यू ऑब्टेन. और आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी स्टैचूज है या फिर जो भी मेमोरियल्स है, उनके बारे में आप जानकारी कलेक्ट करके आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. नाउ थैंक यू. डू यू लाइक माई वीडियो? Tell me in comment box. Thank you very much. Stay home, safe home. Babu Mama.